Commonwealth Games 2022 co-presented by Amul, The Taste of India, and Parle Hide and Seek Fills. हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी स्पोर्ट्स। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल। हम लेकर आ गए हैं, आज है डे 5 ऑफ द ऑन गोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 लाइव फ्रॉम बर्मिंघम इंग्लैंड। और अगर अभी तक के सफ़र की बात करें कि भारतीय खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन दिया है, तो द प्रेजेंट मेडल टैली स्टैंड्स दैट इंडिया इज एट द नंबर 6 स्पॉट विद 9 मेडल्स इन टोटल, 3 gold, 3 silver and 3 bronze. और अगर कल के दिन का क्विक रिकैप दें तो we finished the day with a total of 3 medals which had 1 silver and 2 bronze. There's a lot of exciting lineup today. I'm joined over here in the studio by senior sports expert, commentator and analyst and writer G. Raja Raman. Good afternoon, Raja. Good afternoon, Sakshi. I know it'll be a great day. We look forward from to the Commonwealth Games in Birmingham. I think it's going to be a great day. Hoping for the same over here in the day for us also. लेकिन दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो जैसे राजा ने बोला कि he knows it's going to be a good day, that's only because there are a lot of final events जो आज लाइन अप हो रहे हैं. आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, लॉन बॉल्स, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी आज फाइनल की इवेंट्स हैं. एंड द बिगेस्ट हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड विद इन लॉन बॉल्स बिकॉज द इंडियन वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम in the history of Commonwealth Games have gone on to secure a medal for themselves. Yes, and this is going to be a big day because no matter how the day finishes in lawn bowls, we are assured of a medal over there, whether it's a gold or a silver. ये सिर्फ समय बता पाएगा. लेकिन क्विकली कल के दिन की शुरुआत थोड़ा सा करना चाहूँगी आपके साथ में राजा. अगर कल हम देखें तो we finished with a total of 3 medals, which of course 1 silver and 2 bronze. अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो हमने उसमें देखा कि सबसे बड़ा सिल्वर जो कल हमारे पास आया था, इनफैक्ट वो आया था 48 किलोग्राम कैटेगरी में, जिसको हमने देखा कि सुशीला देवी ने हमें दिलाया. योर थॉट्स ऑन दैट एंड अलॉन्ग विद द 2 ब्रॉन्ज दैट केम अलॉन्ग विद इट आल्सो. आई थिंक सुशीला हैज बीन नोन फेस. ओलंपिक्स भी गई थी और पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल था उनके पास. तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट शी पिक्ड अप अ सिल्वर मेडल. शी इज फॉट वेल एंड शी डिजर्व्स इट. पटियाला में ट्रेनिंग करती है एनआईएस में, एंड आई थिंक all the hard work that she's put in over the last few years, including training overseas and competing overseas, all that has come good for her, that she's got to silver. But शायद इन सब के लिए असली challenge will be to win something of substance in the Asian Games and the Olympic Games. Commonwealth में judo is not so competitive. I'm not dragging her effort down. She's done really well to pick up that silver. But when you get to that level, you want to rise higher, and that is what you want to see from your athletes. Yes. When we talk about this medal, in fact, उसके साथ साथ एक और medal कल judo में आया था, which was in the 60 kilogram category, which was by Vijay Kumar getting us the bronze. Let me come to you, Raja. कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि अगर हमारे एथलीट्स जूडो, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग इसमें मेडल्स ना लाएं तो वो एक ट्रबलसम बात है. सो फिनिशिंग विद द ब्रॉन्ज by Vijay Kumar in the 60 kg category, do you think it's a satisfying place to finish? Of course, all credit to him. Thank you for getting the bronze, but did you think we could have gone higher and better? So it would have been tough for him. We'll have to admit that because he was up against Australians in a bout that could have taken him to the silver medal or gold medal position. Repechage में से फिर then he had to come and win that bronze medal. Good effort overall, but Sushila is the one who you want to see her win the gold medal at this level because she's got terrific exposure. She's been backed by the government. She's had enough competitive exposure internationally, and you want her to win gold. शायद हम भूखे हैं. We are not easily satisfied with a silver medal. You want more from Indian athletes, but there are some events like in swimming, for example, where a 5th place is a terrific effort. Srihari Natraj getting 5th place in 50-meter backstroke sprint was a very good effort. Normally चर्चा नहीं होती है साक्षी, क्योंकि उसमें मेडल की जिक्र ही नहीं होती है. बट ऐसे खेल, राष्ट्रमंडल खेल जैसी जगह में जहाँ पे कुश्ती हो, मुक्केबाजी हो या भारोत्तोलन हो, you want the athletes to come back with at least a medal if not gold, right? And जब कोई खिलाड़ी, इनमें से कोई खिलाड़ी हार जाता है तो सोच विचार करना पड़ता है. I think people will have to think, like Ajay losing out on the weightlifting medal.
is a matter of concern, and people who are in charge of the sport will have to look at where is it that we made a mistake and did not pick up a medal. Yes, I'll come to Ajay to discuss in detail because अभी हम स्क्रीन पे आपको दिखाने वाले हैं on the results कि किस तरह से कल के इवेंट्स के रिजल्ट स्टैंड करें इंडियन एंगल पे. सबसे पहले बात करेंगे वेट लिफ्टिंग की. वेट लिफ्टिंग में इन द मेंस 81 किलोग्राम कैटेगरी अजय सिंह फिनिश्ड ऑन द 4th स्पॉट. That will be a talking point for a very long time to come. लेकिन उसके साथ ही साथ women 71 किलोग्राम कैटेगरी में हरजिंदर कौर finished with the bronze medal for us, while in lawn bowls the history got made because in the women's semi-finals India defeated New Zealand 16-13, and that was the biggest smiling aspect for me as a professional also here when I heard that news and when I got to know of that. लेकिन let's go down a quick recap. सबसे पहले राजा हम बात कर रहे थे अजय की फिनिशिंग ऑन द 4th स्पॉट. डू यू थिंक समवेयर इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इन फैक्ट इट वाज बाय द वे ही वाज गोइंग, उम्मीदें यही रखी गई थी कि वो एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल ले आएंगे. व्हाई डू यू थिंक ही मिस्ड आउट? No, I think he wasn't at his best. There is no doubt about that. Nor was Harjinder Kaur, who picked up the bronze medal. She got lucky. There was one lifter who had 3 no lifts. She might have actually pipped her to the bronze medal. So this was a lucky bronze that you got. Yes, we can easily satisfy ourselves by saying that there have been 7 medals. Weightlifting में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा. But have they got their personal best? Have they got national records? Is what we need to see. Whether it is Jeremy or even Mirabai Chanu, they are capable of lifting more weight. Jeremy का best, for example, is 305 total. He picked up 300 here. मैं नहीं कह रहा कि खराब प्रदर्शन है, अच्छा है, but this is where you want Jeremy to push for 310 and keep growing because you want him to challenge the best in the world when he is competing either in the Asian level or at the international global level. You want him to pick up the better medals. You want him to start competing. 19 साल के है अभी, तो maybe our expectations are a little too high at the moment. But you want Indian athletes to give off their best. ऐसी जगह में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो दिल खुश हो जाता है. हाँ, बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो दिल खुश हो जाता है. That is all we aim to also look out for. Just a quick input or an insight from Raja मैं लूँगी on lawn balls. The biggest one that happened yesterday, India have qualified. पहली बार हिस्ट्री बनी, आज मेडल आने वाला है. I think it's a very big achievement. What would you say? Undoubtedly, ये खेल हमारे लिए it's an alien sport. 2008 में हमने खेलना स्टार्ट किया था बिकॉज हम दिल्ली में होस्ट कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स और लॉन बॉल्स एक कंपलसरी स्पोर्ट है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है तो कंपलसरी स्पोर्ट है. तो हमने कुछ ग्राउंड्स इन्वेस्ट किए थे दिल्ली में, रांची जैसा जगह में, तो एंड दैट इज पेइंग डिविडेंड्स नाउ. यही महिलाएं हैं जो 2010 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 पॉइंट से हार गई थी. तो इतने साल बाद अभी उसका फायदा हो रहा है. दे आर एबल टू कम बैक एंड गेट इनटू अ गोल्ड मेडल पोजीशन. इट शुड बी अ गुड मैच टुडे, लेकिन इंग्लैंड के साथ है जो ऐसे स्पोर्ट में माहिर है. तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर देम टू बैक अप व्हाट दे हैव डन यस्टरडे. लेकिन मानना पड़ेगा, दे विल हैव टू बिलीव दैट दे कैन गो आउट एंड विन अनदर मैच. यस, जिस भी रास्ते आज का ये सफ़र लॉन बॉल में जाए, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि भारतीय महिलाओं ने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया है, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स टू रीच देयर. नाउ हैविंग अ क्विक लुक एट हाउ जूडो वेंट yesterday. In the women's 48 kilogram category, Sushila Devi finished with a silver medal for us, while in the women's 57 kilogram category, Suchika Taryal lost her bronze medal out there, while in the men's 60 kilogram category, Vijay K. Yadav won the bronze for us. वहीं men's 66 किलोग्राम कैटेगरी की बात करें तो जसलीन सैनी ने अपना ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला हारा. तो 2 मेडल्स कल जूडो में हमें मिले थे, विच ऑफ कोर्स इंक्लूड सुशीला देवी एंड विजय कुमार, जिनके ऊपर हमने अभी बात तो करी एंड ये भी बात करी थी, राजा ने आपने बताया भी था इनफैक्ट, कि द इंडियन एथलीट्स नीड टू गो आउट देयर एंड गिव देयर बेस्ट आउटपुट ऑन अ गिवन डे. वो कल जिस तरह से हुआ, सुशीला देवी गॉट अस द सिल्वर, विजय ने वही हमारे लिए ब्रॉन्ज दिलाया. आपको ये उम्मीद है कि यहाँ से प्रदर्शन, जैसे आप कहते हो एशियन गेम्स में और अप करना पड़ेगा, ये प्लेयर्स यहाँ से इसको 2 स्टेप्स अप ले जाएंगे? अब ले जाना पड़ेगा इनको, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि कॉमनवेल्थ में मेडल मिला है, कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन सही हुआ है. तो ये लेवल अपने आप से इज़ नॉट अ वेरी हाई लेवल कंपटीशन. आपको ग्लोबल लेवल पे, इवन एशियन लेवल पे अगर जूडो में मेडल आता है तो बहुत बड़ी बात होती है. बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द सिस्टम
क्योंकि एक तो एनआईएस पटियाला में सुशीला ने ट्रेन किया है और विजय यादव लगातार भोपाल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ट्रेन करते आए हैं. So there is a system which is producing results. You want more of it. You want them to compete internationally more often, gain the ranking points, and then gain the experience so that एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में कुछ कर दिखाएं. यस ऑफ कोर्स, ये तो बात रही जूडो की और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट स्पोर्ट. एक नज़र आप बॉक्सिंग के ऊपर भी डालेंगे कि बॉक्सिंग में इस समय इंडियंस का क्या स्टेटस है. द इंडियन बॉक्सर्स आर देयर गिविंग अस हाउ इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस. हम बात करेंगे कल का मेंस 48 किलोग्राम कैटेगरी, 48 से 51 किलोग्राम कैटेगरी में. उन्होंने देखा कि अमित पंचल हैज एंटर्ड द क्वार्टर फाइनल्स. वहीं अगर मेंस 54 से 57 किलोग्राम की बात करें तो मोहम्मद हुसामुद्दीन ने भी क्वार्टर फाइनल्स में एंटर कर लिया है. मेंस 75 टू 80 किलोग्राम कैटेगरी में आशीष कुमार ने हराया था कल. हमने देखा कि टापा टेटुआ उनको हराया और ही इज मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. वही राउंड ऑफ 16 में अगर हम देखें तो कोई भी किसी भी तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल all three have made it to the quarterfinals. Sakshi, correct, they move on to this. Amit Pangal set a good example. Yes, he's been the world number one, so it was expected that he would win the match. There are 4 Indians in the quarterfinals, men में, और 4 Indian in the women in the quarterfinals. So it's going to be interesting to see how 8 of them. हालांकि कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आए हैं. शिवा थापा जैसे खिलाड़ी को पहले ही बाहर होना पड़ा क्वार्टर फाइनल से पहले. So you want these 8 to come back with medals. Because अगर आप 50 या 55 मेडल की उम्मीद कर रहे हैं तो you want wrestling, boxing and weightlifting to contribute the most. तो अगर ये 8 मेडल जीते तो भारत के लिए अच्छी बात है. It'll add to the medal tally. And if some of them win gold, and they should win gold. Yes, they should. Like you expect Nikhat Zareen to win gold, you expect Amit Pangal to win gold. जब ये गोल्ड भी आता है तो आपका जो छठे स्थान की बात कर रहे थे, छठे से हम चौथी की ओर बढ़ सकते हैं और शायद तीसरी न्यूजीलैंड को अभी हराना होगा. तो इंडिया इज फेसिंग अ चैलेंज, लेकिन कहीं ना कहीं और गोल्ड आए तो इट गेट बेटर फॉर इंडिया. yes, as we say, gold can never feel bad any day on any given day, any moment. उम्मीद यही रहेगी हमारे एथलीट से भी. लेकिन एक नज़र अब हम डालेंगे very quickly on how the hockey and TT results stood at the end of day 4. हॉकी में मेंस पूल बी मुकाबले में इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला रहा वो कल ड्रॉ रहा था. 4-4 पे आके टाई हो गया था. टेबल टेनिस की अगर बात करते हैं, मेंस टीम्स हमारी सेमीफाइनल में पहुंचे जहां पे हमने नाइजीरिया को बीट किया 3-0 से और फाइनल्स में एंटर किया. Yes, this is the big news coming up. TT is the final lineup happening today. And coming to Raja very quickly, the tables in hockey turned very quickly for us. Do you think, would you be satisfied as a sports person who writes to say that, okay, we ended the game 4-4, or did you actually think tables palat I think they were lucky to come away with a 4-all draw. Yeah. ये मैच हार भी सकते थे because England was marauding. They were all over the Indian defense in the fourth quarter. 3-0 को लीड था 3 क्वार्टर के बाद. वहाँ से फिर ये मैच 4-all करना, आई थिंक इट वाज अनफेयर. वरुण जैसे खिलाड़ी को थोड़ा सा कूल रखना चाहिए था. ही सैट आउट फॉर 10 मिनट्स और आप 10 खिलाड़ी के साथ खेल रहे हो तो नेचुरली द ऑपोजिशन विल फील मोटिवेटेड एंड विल अटैक अ बिट मोर, एंड दैट व्हाट हैपेंड. एंड जब एक और खिलाड़ी बाहर हो गया, यू हैड ओनली 9 पीपल ऑन द फील्ड, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल. ये किस्मत की बात है कि भारत ने हारा नहीं है मैच. So India can still top the pool by winning its other 2 matches, but it showed there are positives in this game. It showed that India can score pretty quickly. India can hold a lead for some time. But ये बहुत पुरानी आदत थी कि आप लीड करते हुए फिर मैच को हारने का स्थिति आ जाता है. Hopefully the team will learn lessons from this and avoid losing points at critical phase. ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड करना होगा सेमीफाइनल में, तो लगातार अच्छी जीत दर्ज करनी होगी with more goals than England can score, because at the end of the day it is going to be goal difference that decides whether you finish on top of the group or not. And India must make every effort to finish on top of the group to avoid Australia in the semi-final. अगर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ जाते हैं तो फिर ब्रॉन्ज मेडल का मैच हो जाता है. कम से कम आप फाइनल तक तो पहुंचे. Yes, exactly. And one of the big news of the day, of course, कि TT की आज finals lined up है. Raja, an excited person today. At the start also I had spoken कि आज बहुत सारे finals है. Table tennis finals lined up. Should go our way today. They are defending champions. पिछली बार जीते थे और अब की बार I think the team is a lot better now. Than 2018. Sharad played brilliantly yesterday, as did Satyan, and then the doubles combination was very good also. Nigeria is not an easy team to beat.
They have had good history in Commonwealth table tennis. और उनको हराना बहुत अच्छी उपलब्धि है. But this team you expected to keep winning and come back with the gold again. I think this team is capable of winning gold. तो आज वो 3 से 4 या 4 से 5 बैडमिंटन की टीम भी जीत सकती है. So hopefully we will have more gold medals and you will keep smiling later the night too. I'm smiling and he just took the words out of my mouth because आज राजा ने जितनी बातें कही हैं, they make my heart as a sports professional very happy. We have a lot of good news to hopefully look forward to. Squash की बात करते हैं. कल day 4 कैसे खत्म हुआ था? Women's singles quarter final में सोनन्या कुरुविल्ला ने बीट किया सी सिनली को. वहीं अगर women's singles quarter final के दूसरे स्क्वॉश मुकाबले की भी बात करें तो जोशना चिन्नप्पा ने हराया एच नॉटन को और मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में सौरभ घोषाल ने हराया ग्रेग लोबन को. सो ओवरऑल इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डे फॉर स्क्वॉश में भी अगर हम देखें हमारे इंडियन primarily because सौरभ घोषाल won his match. The other quarter final जो हम सुनैना की बता रहे हैं वो प्लेट का क्वार्टर फाइनल है. She's got into the plate semi-final. It doesn't count for medals at all. Joshna losing was a bit of a setback for India because you wanted her to win and get into the medal rounds as well. But Saurabh Ghoshal, age has not stopped him, just like Sharad Kamal in table tennis. Saurabh is playing some very good squash. अगर वो आज मैच जीत जाते हैं तो भारत के लिए अच्छी बात होगी to get into the final and to be able to try and win a gold medal, which is elusive. Not easy in squash. क्योंकि कॉमनवेल्थ में स्क्वाश स्टैंडर्ड इज प्रीटी हाई एंड फॉर सौरभ घोषाल टू बी इन द रेकनिंग फॉर अ मेडल इज वेरी वेरी गुड. ऑल्सो वन थिंग दैट जस्ट ऑब्जर्व्ड, अगर हम देखें कि जोशना का कल जो स्कोर लाइन भी रही जिस तरह से अपने मैच को हारी हैं, इट रेड 9-11, 5-11, 13-15, व्हिच गोज ऑन टू शो कि स्क्वाश की जो उनके पहले 2 राउंड्स हुए उसमें she was already way down, उनको हरा दिया गया. The third round was just a namesake round अगर देखा जाए, वरना 9-11, 5-11 और उसके बाद तो 13-15. So every set counts, right? Yes. So you need to win 3 sets. Best of 5 जब खेल रहे हो. So Joshna tried very hard to come back into the game, into the match, but she was up against a superior opponent. It was not her day, but it is still a setback because India has done well in squash in the Commonwealth Games, and hopefully there will be some medals, especially in women's doubles and perhaps in the mixed doubles as well. Correct. Okay, let's move on to the next sport. देखते हैं कि स्विमिंग कल डे 4 पर इंडियंस के लिए कैसा रहा. As Raja just said, it turned out to be a day जिसमें we can make peace with the fact because men's 100-meter butterfly heat 6 में साजन प्रकाश ने 7th spot पर फिनिश किया. men's 50-meter para swimming final में SN जादव और N मुनुकुंदन इन दोनों ने 5th और 7th स्पॉट पर फिनिश किया. और अगर हम मेंस 50-मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल की बात करें तो श्रीहरि नटराज ने भी 5th स्पॉट पर फिनिश किया. तो एसएन जादव और श्रीहरि नटराज फिनिशिंग ऑन द 5th स्पॉट. व्हाट यू जस्ट सेड राइट नाउ राजा, कि हम एज इंडियंस बिल्कुल भी इस बात से यूज टू नहीं है कि इंडियन स्विमर्स इतने ऊपरी स्थान पर आकर फिनिश करें. डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट शोज और स्पीक्स दैट वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे when we look at swimming as a sport which is being represented in a multi-sport event now? Sakshi, we've had 1 gold medal in swimming overall. Yes. That's come from para swimming, Prashanta Karmarkar in 2010. Yes. Uske baad, this is the best performance where you finishing 5th, Srihari Nataraj finishing 5th, or Suyash Jadhav, who's from Maharashtra, finishing 5th. And then Niranjan Mukundan, of course, finishing 8th as well. Finishing 7th, sorry. This is good performance, but I think we need to talk a bit more about Srihari Nataraj. He was capable of going faster than the 25-23 that he clocked. If he had dipped in under 25 seconds, he might have got a medal. But terrific effort. Yes. This is a world-class competition, unlike in boxing, wrestling, and weightlifting. This is truly world-class competition where Australia, Canada, England and South Africa tend to dominate in the Commonwealth Games. Yes. And then New Zealand, of course. So for him to finish 5th was a very creditable effort. He's swum 6 races so far, but he's not come out with his best. Yes. And I know he's pretty disappointed with himself for not getting the personal best. हर खिलाड़ी की यही सोच होनी चाहिए कि मैं अपना बेस्ट इधर लेकर आऊँ और फिर कुछ कर दिखाऊँ. मेडल आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो नो प्रॉब्लम. बट as we keep saying, give in your 100% and try and
improve on what you have already done. Yeah, work on pushing yourself harder and work on making yourself a better professional or a player or a person every other day. एक नज़र डालेंगे कुछ और इवेंट्स की ओर जिसमें कल देखेंगे कि डे 4 पर इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा. We have badminton over there on the screens right now. मिक्स टीम के सेमीफाइनल्स कल हुए भारत और सिंगापुर के बीच में, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगापुर को 3-0 से हराकर फाइनल्स में एंटर कर लिया. और अपने दर्शकों को बता दें कि आज फाइनल्स का मुकाबला होगा. एंड जिम्नास्टिक्स में भी कल हमने देखा वुमेन्स वॉल्ट में प्रणति नायक फिनिश्ड अप ऑन द 5th स्पॉट. एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की अगर बात करेंगे तो उसमें भी आज फाइनल्स के मुकाबले हैं. लेकिन सबसे पहले द बिग न्यूज़, बैडी कमिंग इनटू प्ले. वी हैव द फाइनल्स लाइन अप टुडे. डू यू थिंक इट कुड गो आवर वे? Yes, definitely. Again, you're defending champion. Yes. Malaysia को हराना होगा. Yeah. Not an easy task, but not also they will draw impossible. strength from yesterday's victory, where Lakshya Sen beat the world champion. Yes. Right? So I think the team is looking good. और एक जोश बढ़ जाता है पूरे बैडमिंटन प्लेयर्स में when they come together as a team. And it's lovely to see scenes where Sindhu and Srikanth and everybody else is coming together and goading one another up. I think it is terrific to see. And this is what you want, your team to give off the best every single time. Abhi tak ke safar mein they have dropped only 1 point, which was a women's doubles match where you fielded the weaker of the teams against Australia. They lost 1 point. Other than that, it has been dominant for India. I think they can expect to win gold. लेकिन हर point जीतना होगा. You have to make an effort to win the gold. Yes, हर पॉइंट तो जीतना पड़ेगा बिकॉज सामने वाले जो अपोनेंट्स है वो इतनी आसानी से कभी भी इस गेम को हमें निकल के जीतने नहीं देंगे. इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट एंड एज वी से दैट मे द बेस्ट स्पोर्ट ऑफ द डे और द बेस्ट मैन ऑफ द डे विन. हियर वी विल से मे द बेस्ट टीम विन हु पुट्स अप their best effort till the end. And आखिरी इवेंट जो कल के दिन में हुआ यानी डे 4 पर वो था साइकिलिंग. Bringing up on the screen quick results, men's 100 meter time trial में रोनाल्डो लाइटनजैम ने 12th स्पॉट पर फिनिश किया. वहीं मेंस 40 किलोमीटर्स क्वालिफाइंग राउंड्स में नमन कपिल एंड वी केंगलगुट्टी ने रिस्पेक्टिवली कैसे फिनिश किया मैं बता दूं. नमन कपिल फेल्ड टू फिनिश द रेस एंड ऑल्सो वी केंगलगुट्टी failed to finish the race. और वहीं women's 10 kilometer stretch race ने मीनाक्षी जो थी she suffered a crash. Well, this goes to show कि cycling के अंदर कल the day wasn't good for the Indians, where we see failing to qualify, then going through a crash and finishing on the 12th spot. Again, this is a world-class competition, like swimming and athletics, which begins today. It is a world-class competition. यहाँ पे आपको 12 से ऊपर आना होगा because the government of India has invested a lot in the cyclists. इंदिरा गांधी स्टेडियम जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. वहाँ पे there is a national academy from where all these cyclists come together and work very hard. They have got international exposure. They have been training in Turkey and a lot of European countries. Now you want them to produce results. Maybe we are being a bit impatient, लेकिन जब आपके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट जाता है, you want some result and not finish just 12th in the competition. कम से कम फाइनल तो पहुंचे, जहाँ 6 लोग हो वैसे फाइनल में पहुंचे. Then I think it will be good for Indian cycling. There is potential, no doubt about it, क्योंकि आपके वर्ल्ड जूनियर चैंपियंस कई सारे हैं, वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 रहे हैं. The transition from junior to senior is what they have to manage well. But what I want to ask you, Raja, is कि हमने देखा है बहुत बार, in fact most of the time cycling की अगर हम बात करते हैं तो Indians have not been able to go up to that point. I'll come to that point, लेकिन उससे पहले very quickly एक नज़र डालेंगे मेडल टैली के ऊपर कि किस तरह से मेडल टेबल इस समय स्टैंड करती है. ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर 1 स्पॉट, 31 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 bronze, a total of 71 medals. England on second spot, 21 gold, 22 silver, 11 bronze, 54 in total. न्यूजीलैंड की बात करें तो तीसरे स्थान पर 13 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ 24 मेडल्स इन टोटल. कनाडा की बात करते हैं तो चौथे स्थान पर है 6 गोल्ड, 11 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज, 33 मेडल्स के साथ. वहीं 5वें स्थान पर है साउथ अफ्रीका, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल ऑफ 12 मेडल्स. छठे स्थान पर है इंडिया, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल ऑफ 9 मेडल्स. एंड स्कॉटलैंड, मलेशिया, नाइजीरिया एंड वेल्स following, or should I say just following in that list on the 7th, 8th, 9th and the 10th spot. Well,
We were just talking about all of this, कि the Indians can possibly look to go up in that table tally when we talk of medals. Lots more to talk on that, but after this short break. You fly, you try, taking strides higher and higher, reaching for the sky, running, jumping, flying higher. Milk, the world's original energy drink. Amul, official sponsor, Indian Commonwealth Games team. This is so confusing, yaar. हाइड एंड सीक फिल्स सीरियल है, बट उसे कभी भी कहीं भी विद मिल्क विदाउट मिल्क डे और नाइट जैसे चाहो खा सकते हैं. Now that's confusing. हाइड एंड सीक वाले चॉकलेटीनेस से भरा न्यू हाइड एंड सीक फिल्स. ब्रेकफास्ट टाइम, स्नैक टाइम, एनी टाइम. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और दोस्तों अब कल से अब थोड़ी सी बातचीत का रुख करते हैं आज की ओर, यानी डे 5 पे आज कौन से वो मेजर इवेंट्स हैं जो हाईलाइट या फोकस पे रहेंगे. और क्विकली कमिंग अप ऑन द स्क्रीन इज गोइंग टू बी द टीम शेड्यूल फॉर इंडिया टुडे फॉर ऑल द वेरियस इवेंट्स दैट वील हैव बीन लुकिंग एट. बॉक्सिंग के आज इवेंट्स लाइंड अप है. मेन 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 कैटेगरी में, जहां हम देखेंगे आर्टोकस अप अगेंस्ट ए कोटे. रात को 11:15 बजे आज मुकाबला है. बैडमिंटन में मिक्स टीम्स के फाइनल्स हैं. इंडिया अप अगेंस्ट मलेशिया. Not going to be an easy match, but hoping that the Indians finish up with a podium finish today, coming up at 10 p.m. IST today. वहीं एथलेटिक्स की अगर बात करें तो मेंस लॉन्ग जंप क्वालिफाइंग में एम श्रीशंकर और उनके साथ साथ हम देखेंगे कि मोहम्मद ए यहिया, ये दोनों होंगे आज दोपहर 2:30 बजे. और अगर हम बात करें मेंस हाई जंप क्वालिफाइंग राउंड में तो तेजस्विनी शंकर आज रात को 12 बजे आप इनका ये मुकाबला दे सकते हैं एथलेटिक्स के अंदर. द नेक्स्ट इवेंट दैट्स गोइंग टू बी लाइंड अप टुडे इज एथलेटिक्स के अंदर ही वुमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल्स देखेंगे आप. सीमा पूनिया और नवजीत कौर ढिल्लोन की तरफ से, जो रात को 12:52 पर इंडियन टाइम पे आप देख सकते हैं. वुमेन्स शॉट पुट क्वालिफाइंग में भी मनप्रीत कौर 3:30 बजे आज दोपहर में खेलेंगी. वुमेन्स 100 मीटर राउंड 1 हीट 5 में आप ड्यूटी चंद को देख सकते हैं आज शाम को 4:45 पर. ये रहेंगे सारे एथलेटिक्स के इवेंट्स. इसके बाद हम आगे रुख करेंगे एथलेटिक्स से टू द नेक्स्ट स्पोर्ट विच इज़ वेट लिफ्टिंग. वुमेन्स 76 किलोग्राम कैटेगरी में आप देखेंगे पूनम यादव को आज दोपहर में 2 बजे. मेंस 96 किलोग्राम कैटेगरी में विकास ठाकुर को आप देखेंगे शाम को 6:30 बजे. और वुमेन्स 87 किलोग्राम कैटेगरी में आप देखेंगे उषा बन्नौर NK को रात को 11 बजे भारतीय टाइम के अनुसार वेट लिफ्टिंग में. We'll now move on to the next sport, which is lawn bowls. The women's pair round 1, India up against New Zealand today, 1 p.m. Women's triple sectional round 1, India up against New Zealand again at the same time 1 p.m. वही men's single sectional round 1 की अगर बात करें तो मिर्दुल बोरगोहेन को आज आप शाम को 4:15 बजे देख सकेंगे. लॉन बॉल्स के मेजर इवेंट जिसमें इंडिया का आज फाइनल्स का मुकाबला है. इंडिया अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड. द बिग न्यूज़ ऑफ द डे राजा क्विकली. बहुत सारे आज ऐसे इवेंट्स हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन बॉल्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, जिसके अंदर हम फाइनल्स के इवेंट्स देखने वाले हैं. एज अ प्रोफेशनल आप किस में सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं दैट वी विल हैव अ गुड फिनिश टुडे? बैडमिंटन शुड बी गोल्ड, टेबल टेनिस शुड बी गोल्ड, एंड आई एम श्योर तीनों वेट लिफ्टर का कुछ ना कुछ मेडल आएगा. आई बिलीव पूनम कैन विन गोल्ड, सो आई थिंक इफ यू कैन पिक अप 3 गोल्ड हमारा टैली डबल होगा. 6 तक जाएंगे. लॉन बॉल शायद आज फाइनल नहीं है. टीम फाइनल विल, द क्वाड्रुपल फाइनल विल नॉट बी टुडे. इट्स प्रॉब्ली टुमारो. आई एक्सपेक्ट मुरली श्रीशंकर टू क्वालिफाई फॉर द लॉन्ग जंप फाइनल. आई बिलीव दैट सीमा पुनिया कैन विन अ मेडल. उनके पास 4 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स हैं. आज हो सकता है कि 5वां मेडल आज रात में शी कैन विन इन द डिस्कस थ्रो फॉर वुमेन. ऑफ कोर्स. एंड मैं एक क्विक अपडेट अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगी. जब हम लॉन बॉल्स की बात कर रहे थे कि लॉन बॉल्स के जो आज फाइनल्स है इसमें थोड़ा सा टाइम चेंज है, वो इसलिए क्योंकि लॉन बॉल्स के अंदर वुमेन्स जो फोर्स फाइनल है, इंडिया विल बी अप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आज शाम को 4:15 बजे. वही मेंस ट्रिपल सेक्शनल में इंडिया विल बी अप अगेंस्ट इंग्लैंड
आज रात 8:45 पे मेंस 4 सेक्शनल राउंड 1 में इंडिया विल बी अप अगेंस्ट फीजी। आज रात को 8:45 पर वुमेन्स पेयर राउंड 1 में इंडिया विल बी अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आज दोपहर 1 बजे जो मुकाबला होने वाला है, और बाकी जो हमने आपको अपडेट्स दिए थे जहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला रहेगा वुमेन्स ट्रिपल सेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो रहेगा आज का फोकस वो है वुमेन्स 4 फाइनल शाम को 4:15 बजे, इंडिया बीइंग अप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन लॉन बॉल्स टुडे। एंड स्विमिंग के तो हमने आपको अपडेट्स दिए और एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग के भी अपडेट्स दिए। आई विल कम वेरी क्विकली ओवर हियर टू राजा, क्योंकि स्विमिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मेंस 200 मीटर बैक स्ट्रोक हीट 2, मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल हीट 1 और मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल हीट 2, ये तीनों इवेंट्स आज लाइन अप हो रहे हैं, जिसमें श्री हरि नटराज, अद्वैत पेज और कुशाग्र रावत आज पार्टिसिपेट करने वाले हैं रिस्पेक्टिवली इन ऑल द 3 कैटेगरीज, स्टार्टिंग एट अराउंड 3 in the afternoon आज। देन it will be looking at being winded up around 4:30, यानी 3 से 4:30 के बीच में आज आप सारे स्विमिंग के इवेंट्स देख सकेंगे। जिम्नास्टिक्स की अगर हम बात करते हैं उसमें भी फाइनल्स हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में मेंस वॉल्ट फाइनल सत्यजीत मंडल शाम को 5:30 बजे आप देख सकेंगे आज। एंड उसके साथ ही मेंस पैरेलल बार्स फाइनल में सैफ सादिक तंबोली शाम को 6:30 बजे आज इसमें होंगे, यानी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स अनदर थिंग टू लुक अप टू। लेट मी जस्ट move on to the next event also। हॉकी में वुमेन्स पूल ए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड शाम को 6:30 बजे आप ये मुकाबला देखेंगे आज। वहीं टेबल टेनिस में मेंस टीम गोल्ड मैच इंडिया अप अगेंस्ट सिंगापुर शाम को 6 बजे। बहुत कम समय के अंतराल में ये दोनों मुकाबले होने वाले हैं आज हॉकी के। स्क्वॉश की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स सिंगल्स प्लेट हम देखेंगे सबसे पहले सुनन्या कुरुविल्ला वर्सेस फैज़ा जफर शाम को 8:30 बजे, और मेंस सिंगल्स में भी सेमीफाइनल आप देखेंगे स्क्वॉश के। सौरभ घोषाल विल बी अप अगेंस्ट पॉल खोल शाम को 9:15 बजे। So we see that there are a lot of semi-final and final events lined up today. But I was talking to Raja about swimming. अगर हम swimming की बात करते हैं राजा, तीनों ही जो हैं आज वो heat events हैं। यहाँ पर आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे swimmers आज थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे कल के मुकाबले? Like this is a different ball game Correct. altogether. 200 meter back is not really Sri Hari Natar's pet suit. He prefers the shorter events, which is 50 and 100. So अगर वो final आ जाते हैं, he'll become the first Indian. He's already in a different league because nobody has made it to 2 finals, qualified for 2 finals, and he will add one more if he get to the final, which I believe he can. He is capable of doing that. But Advaita and Kushagra will be interesting to see what they do because Advait Page and Kushagra Rawat. Kushagra has been disappointing so far. He's probably battling with an injury. We are not too sure about it. But hopefully Advait will come up with something and get into the final of the 1500. होपफुली लेट्स वेट एंड वॉच टू सी कि हमारे स्विमर्स आज किस तरह का प्रदर्शन देते हैं। एक नज़र इस पर भी डालेंगे कि वेट लिफ्टिंग के अंदर जहां राजा कह रहे थे कि आज हमें उम्मीद होनी चाहिए कि हम गोल्ड फिनिश ले सके। आई विल कम बैक टू हिम विद दैट क्वेश्चन। इन द वुमेन्स 76, मेंस 96 एंड वुमेन्स 87 किलोग्राम कैटेगरी, पूनम यादव, विकास ठाकुर एंड उषा बन्नौर आर गोइंग टू बी अप इन देयर रिस्पेक्टिव categories. You are expecting a good finish from these weightlifters. 2 of them, Poonam and Vikas, I think both can win gold medal. Both are capable of giving off their best, and it'll be interesting to see how they cope with the pressure. जब आप ऐसे खेल खेलते हैं जहाँ पे आपका gold expected है, how will you perform? How will you deal with the pressure of expectation? This will tell us about their medal. Hopefully, both of them will stand scrutiny and then come back with gold medals. Yes, hopefully. We'll have to wait and watch as to how time pans out for that, or rather on that for us. लेकिन अभी वक्त हो गया है क्विकली एक नज़र मेडल टैली के ऊपर फिर से डालने का दोस्तों। Let's have a look as to how the medal tally stands right now. Australia, England, New Zealand on the 1st, 2nd and 3rd spot respectively अभी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के टोटल मेडल्स हैं 71। वहीं इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो उनके पास 54 मेडल्स है टोटल, और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो 24। ऑस्ट्रेलिया ने जहां 31 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज अभी तक कमाए हैं, तो वहीं इंग्लैंड ने 21 गोल्ड, 22 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज अभी तक कमाए हैं, और न्यूजीलैंड ने 13 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज कमाए हैं। कनाडा और साउथ अफ्रीका चौथे और 5वें स्थान पर हैं, वहीं भारत अभी 6ठे स्थान पर है टोटल ऑफ 9 मेडल्स के साथ, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर,
3 ब्रॉन्ज। ये रहेगी इंडिया की स्टैंडिंग, बट कनाडा, साउथ अफ्रीका फॉलोइंग इन वेरी क्लोज हील्स, जस्ट नेक्स्ट टू इंडिया, थोड़े से ऊपर ही हैं, क्योंकि कनाडा के पास है टोटल अभी 33 मेडल्स और साउथ अफ्रीका के पास है अ टोटल ऑफ 12 मेडल्स। मत भूलिएगा दोस्तों कि ये आज है डे 5 जब हम देख रहे हैं, आज का दिन अभी शुरू हुआ है, अभी कुछ और दिन लगभग बचे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। सफ़र अभी थोड़ा और बचा है। भारतीय खिलाड़ियों से यही उम्मीद रखी जाएगी कि वो यहाँ से अपने प्रदर्शन को थोड़ा और बेहतर बनाएं और छठे स्थान के बजाय हम चौथे या फिर तीसरे स्थान पर फिनिश करने की उम्मीद रख सकें। और कुछ बहुत कुछ इसमें बचा है अभी डिस्कशन के लिए, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबे डूबी डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलिशियस। हाइड एंड सीक वाले चॉकलेटीनेस से और भरा न्यू दोस्तों- हाइड एंड सीक फिल्म्स। ब्रेकफास्ट और दोस्तों इसके साथ ही अब वक्त हो गया है कि हम लाइव एक्शन की ओर रुख करें। राजा, सबसे पहले योर लास्ट वर्ड्स और पार्टेकिंग वर्ड्स फॉर नाउ बिफोर वी एंड द शो टुडे। I think we should more than double the number of gold by the end of the day and rise up in the ranks. Third place तो अभी नहीं आएगा. It's going to take a lot of hard work to get to that third place. A lot of medals are needed, but you can rise to the fourth place by the end of tonight. Okay, if we can rise up to the 4th place, that should be a satisfactory place to finish with, to make peace कि the Indian athletes did put up a good show. Thank you so much राजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों इसके साथ अब वक्त हो चला है कि आपको सीधे लाइव एक्शन की ओर लेकर चले। Coming up ahead will be weightlifting for you. ये खेल प्रांगण आप सभी का स्वागत है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता महिलाओं की स्पर्धा यहाँ पर चलने वाली है और 76 किलो भार वर्ग में मुकाबले होंगे और